तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. The yogi is superior to the performance of penance. He is also deemed superior to those who have attained true knowledge. He is considered greater than the performers of actions as per the scriptures. Therefore, Arjun follows the path of a yogi. This is a verse taken from Bhagavad Gita. Good morning, friends. Suprabhat. I am Sanjeev Kumar. I am starting a new channel of yoga from today. And here I will. I am not a yoga teacher, but I am a follower of yoga. I have been following the path of yoga for past around 8 to 9 years. In the year 2013, I started doing yoga, and I practice Ashtanga Yoga. So here I will try to tell you about certain facts, and I also guide you towards various asanas and pranayams of yoga which can help you in daily life. First, I will give you a basic guidelines or basic rules of yoga. What are the kinds of yoga? How yoga is being have been practiced in India for past few years. Yoga is one of the great achievements of Indian civilization. In our country, we have been doing yoga since thousands of years. Even in the Mahabharata, it has been explained that Krishna taught Arjuna the basics of yoga and the learnings he gave to Arjuna. Now, the word itself, what does yoga word means? वो योगा जो कहते हैं योग, इसका मतलब एक जोड़. योगा इज इन वर्ड इटसेल्फ मीन्स टू जॉइन. दैट मीन्स जोड़ना, जिसको कहते हैं उसे योग कहते हैं. हिंदी में जिसे हम जोड़ना कह सकते हैं, इंग्लिश में जिसे टू जॉइन कह सकते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ योगा. इट इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल सोल विथ ऑल द परवेसिव डिवाइनिटी. और इन हिंदू टर्म्स, हमारे हिंदू धर्म में अगर इसको कहें तो आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन को योग कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशन इज अ मेजर फैक्टर इन ऑल द मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रिलीजन्स. हमारे यहाँ की जो हमारा जो धर्म है उसमें योग का एक बहुत बड़ा महत्व है. ब्रॉडली योगा को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं. ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा और रज योगा. 4 तरह के जो प्रमुख योग के टाइप्स होते हैं वो यही 4 हैं. ज्ञान योगा इज द वे ऑफ विजडम. भक्ति योगा इज द वे ऑफ इमोशनल रैपट, द रैपट यू बिल्ड विद द गॉड. रज योगा इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंड कर्म योगा इज द वे ऑफ डेडिकेटेड वर्क्स. And in West, we have been seeing a lot of new developments in the yoga. What we see in the West, people doing is called Hatha Yoga, which basically involves only the physical disciplines, including various asanas. It is not complete Ashtanga Yoga. This is also very good. Ashtanga Yoga जो होता है वो एक प्रॉपर वे में अगर आप समझें तो अष्टांग योग में 8 भाग होते हैं, पर हठ योग सिर्फ एक पार्ट है. हठ योग में सिर्फ आसन्स आते हैं विच आर कंडक्टिव टू हेल्दी लाइफ एंड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी. योगा इज नॉट प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन विच टीच वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेट साइंस. देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ बुक्स. बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं योगा के ऊपर, और आप चाहें तो बहुत सारी किताबों से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. पर मैं यहाँ मदद करूँगा आपको, योगा के बारे में थोड़ा ऐसा समझाऊँगा. I am also taking clues from one of the books written by Dharamveer Singh Mahira, and I am thankful to BKS Iyengar, whose books have helped me in learning yoga for past few years. Now I will tell you, friends, about what is the importance of yoga. Basically, anybody can do yoga in our country as well as world. Anybody who is in the age group of 8 to 80 can do yoga. So how it starts?
The yoga basically is what I'm going to tell you about is Ashtanga Yoga. There are eight types of yoga which is called Ashtanga Yoga, which I have been practicing, and which is the Patanjali form of yoga, which you also see on televisions, or Guru Ramdev is also teaching the same Patanjali Ashtanga Yoga. These eight limbs of yoga are: first one is Yam, second one is Niyama, Niyams, third one is Asanas, fourth one is Pranayam, fifth one is Pratyahara, sixth one is Dharana, seventh one is Dhyana, and eighth one is Samadhi. First, I will tell you about Yama. यम उसे कहते हैं जो एक एथिकल डिसिप्लिन है। ये 5 तरह के होते हैं। यम पहला जो मुख्य भाग है योग का, उसमें 5 यम के 5 रूप होते हैं: अहिंसा, सत्य, अष्टेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम क्या होता है? यम वो है बेसिकली जो पृथ्वी पे नियम है वो देवलोक में यम है। यानी नियम के अनुसार ही अगर हम चलते हैं अपने जीवन में, तभी हम सुख और समृद्धि पा सकते हैं। तो यम के जो 5 भाग हैं, उसमें पहला भाग है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, जो कि हमारे देश में गांधी जी ने वो सबको सिखा के गए हैं। दूसरा भाग है वो सत्य, यानी ट्रूथफुलनेस। विल हैव टू बी एंड वी शुड बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ एंड टू आवर सोसाइटी, टू आवर कंट्री, टू द वर्ल्ड। तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं अष्टेय, नॉन स्टीलिंग, यानी कि देयर शुड बी नो डिजायर ऑफ स्टीलिंग टू पोजेस समवेयर और समथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज कॉन्टिनेंस, बिहेवियर ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड विच लीड्स टू ब्रह्मन। जो आपको ब्रह्म की तरफ ले जाए, जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाए, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स कुछ भी होर्डिंग ना करना, कुछ भी हम अपने घर में ज़्यादा, आजकल जो सोचते हैं हर कोई कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लें, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ऐसा प्रयोग करने वाली वस्तु या पदार्थ का उपयोग जो लोग करते हैं जनरल अपने जीवन काल में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करना, इसे कहते हैं। अगर ये ख्याल मन में आ गया, किसी के भाव मन में आ गए, तो वो गलत होगा। उसे कहते हैं अपरिग्रह। ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए अपने मन में। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड लिम्ब ऑफ योगा विच इज कॉल्ड नियमास। नियमास और ऑब्जर्वेंसेस। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नियमास: शौच, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब प्यूरिफिकेशन। सुबह से उठ के जब आप नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं शौच। दूसरा है संतोष। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। वन शुड फील कंटेंट इन वंस माइंड एंड बॉडी। आप अपने आप को कंटेंट फील करेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। तीसरा जो पार्ट है नियम का, वो है तपस, यानी तपस्या। बर्निंग डिज़ायर फॉर इनर ज़ील, और जो अपने अंदर के जो एक एंथुजियाज्म होती है, उसे कहते हैं तपस। स्वाध्याय यानी स्वयं ही अपने अंतर्मन से किसी चीज़ का अध्यापन करना, उसे कहते हैं स्वाध्याय। किसी भी विज्ञान का या साइंस और आर्ट्स, एनीथिंग इफ यू स्टडी ऑन योर ओन इज कॉल्ड स्वाध्याय। ईश्वर प्राणिधान इज सरेंडर टू गॉड, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। दस यम एंड नियमा, ये जो यम और नियम जो हैं, ये दोनों मिलकर ही बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं योग के। योग का जो बेसिक फाउंडेशन है वो यम और नियम ही है। उसके अलावा जो तीसरा जो हम
बात करेंगे तीसरी जो पार्ट की योग की, उसे कहते हैं आसनास। जब हम आसनास में आते हैं तो आसन जितने भी आजकल आप देखते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन जो टीवी पे आ रहे हैं या फिर अलग अलग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, वो सारे आसनास को एक अलग भाग में बांटा गया है, उसे कहते हैं आसन। इसके अंदर अपने शरीर के विभिन्न अंगों को हम आसनों द्वारा उत्तेजित करते हैं, उन्हें एक रिदम में लाते हैं, ऐसे एक लय में लाते हैं जो कि एक ब्रह्मांड से जुड़ जाए, उसे कहते हैं आसनास। सो देर आर मेनी पोस्चर्स विच अफेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपके मन मस्तिष्क पर असर करते हैं, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपके बाहरी व्यक्तित्व के ऊपर असर करते हैं, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर असर करते हैं, कुछ ऐसे आसन जो आपके कंधे मजबूत करेंगे, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपके हाथों और सीने को मजबूत करेंगे, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपकी कमर और आपके पेट को मजबूत करेंगे, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपके पाँवों को, हाथों को और पीठ के हिस्से को, मेरुदंड को, सबको असर करेंगे। तो अलग अलग पोस्चर के आसन होते हैं जो कि प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये तीसरा भाग है योग का। जो चौथा भाग है वो है प्राणायाम। अब ये प्राणायाम पे आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, हर लोग, सबको कहा जा रहा है कोविड का समय चल रहा है तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम इज़ it's not necessary that you do pranayam only in morning. Pranayam can be done anytime. प्राणायाम होता क्या है बेसिकली? प्राणायाम इज रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। जो हम सांस ले रहे हैं ना, श्वास जो हम खींचते हैं, बस ये श्वास लेने की प्रक्रिया को जब हम एक निर्धारित रूप में करते हैं तो उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन ऑफ एयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड प्राणायाम। अब इस प्राणायाम के भी विभिन्न रूप होते हैं। अनुलोम विलोम होता है, भ्रामरी होता है, कपालभाति होता है। ये सारी बातें आप सुनते रहते होंगे अक्सर, आजकल काफ़ी लोग इसके बारे में बताते रह रहे हैं। सो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। पहला पार्ट हमने जाना यम, फिर नियम, फिर आसन, और चौथा भाग हो गया प्राणायाम। जो पांचवा भाग होता है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मीनिंग क्या हुआ? प्रत्याहार इज रिस्ट्रेनिंग और विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस हैं। जब हम अपने पांचों सेंस को, आप सभी जानते होंगे हमारे 5 सेंस होते हैं, जब आप 5 सेंस को अपने आप से विड्रॉ कर लेते हैं, ब्रह्मांड से अलग हटा लेते हैं उसे, तो उसे कहते हैं प्रत्याहार। देयर इज़ नो इंटरेस्ट लेफ्ट इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। उस समय हमें किसी बाहरी वस्तु से कोई संबंध रखना नहीं होता। वो सब सिचुएशन ऐसी होती है, वो ऐसी स्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जिसके अंदर हम एक ऐसे भाव में चले जाते हैं जहाँ हमें अंतर्मन में हम खो जाते हैं और बाहरी दुनिया से, बाहरी संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तभी कहते हैं उसे प्रत्याहार। ये प्रत्याहार तभी आता है जब आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। जब इन चारों का एक योग बनेगा तभी प्रॉपर आप प्रत्याहार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्याहार एक बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ योगा है। ये 5वां भाग है योग का। ये जब आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम में पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे तब प्रत्याहार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्याहार से भी आगे बढ़ेंगे तो छठा भाग आता है धारण। जब आप पूरी तरह ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर लेंगे, योगा करते करते एक लेवल आएगा, एक समय आएगा जब ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित हो जाएगा, आपको महसूस होगा, तब उस लेवल को कहते हैं धारण। जो अगला भाग मैं बताने जा रहा हूँ योग का, वो 7वां भाग ध्यान। ध्यान एक ऐसा भाग है जिसमें आप हर समय अपने अंतर्मन को ब्रह्मांड से जोड़े रख रहे हैं। ये एक एडवांस स्टेज है योग का। जब आपका मन कंप्लीटली ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा, प्रत्याहार के आगे, धारण के आगे जब आप ध्यान में लीन हो जाएंगे तो वो लेवल कहलाता है 7वां भाग ध्यान। और आखिरी भाग जो होता है
वो है समाधि। समाधि हमने पहले पुराने ज़माने में सुना भी करते थे, जो महापुरुष लोग होते थे वो समाधि में चले गए। समाधि मीन्स आप पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो ब्रह्मांड में लीन हुए, तो उसे कहते हैं समाधि। इट्स ए सुपर कॉन्शियस लेवल, सुपर कॉन्शियस स्टेट। So this is the last state of yoga. So these friends are the 8 limbs of yoga which I have explained to you today, and these all are explained in Patanjali's yoga. These are all clearly explained in Yoga Sutra of Patanjali, which is our one of the scriptures of our country. ये हमारे देश का एक बहुत ही जाना माना वेद है, एक तरह का योग विद्या है, जिसको पतंजलि ने, गुरु पतंजलि थे हमारे, जो ऋषि मुनि थे, उनका नाम था पतंजलि, उन्होंने शुरू किया था ये, जो आप बेसिकली आजकल हर जगह टीवी पे, रेडियो पे और अलग अलग माध्यम से पेपर्स में, मैगजीन्स में और नेट के ऊपर देख रहे हैं, वो सारा पतंजलि का अष्टांग योग ही है। तो ये तो बेसिक एक जानकारी हुई जो मैंने आज आपको दी। We'll take it ahead in the next episode, and I will start with the first part, yama and niyam. You'll have to practice on your own, friends. Everyone will have to practice on their own. यम जिसमें मैंने बताया था अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह, ये पांचों खुद ही आपको सभी को अपने अंतर्मन से, नियम से फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा नियम जो मैंने आपको बताया, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम, ये भी आप स्वयं ही करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। पर तीसरा जो पार्ट है आसन, आसना, वो मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे, कौन सा आसन से कौन से अंग के ऊपर असर पड़ता है, किस अंग से हम, कौन से अंग को हम रेगुलर अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी के लिए कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा आसन करें तो हमारे उस शरीर के उस भाग को वो बेनिफिट करता है। ये मैं आपको अगली भाग में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ, एंड विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।